steps that you need to follow. First, we have seen that articulate the problem early means you have to know what about your problem type beforehand. Means आप क्या करने जा रहे हो, क्लासिफिकेशन या क्लस्टरिंग, रिग्रेशन, रैंकिंग के बारे में आपके पास आइडिया होना चाहिए पहले से. Second, we have gone through their definition and with some examples of classification, clustering, regression, and ranking, right? After that, we have seen that how we will go for establishing some mechanism for data collection. वहाँ पे मैंने एक example दिया था Google Form. Okay. उसके बाद format data to make it consistent means you need to use a proper file format. वहाँ पे मैंने आपको बताया था CSV के बारे में. CSV that stands for comma separated values, right? Then we talk about reduced data. ठीक है. So I think this one I have not discussed. क्या मैंने ये डिस्कस किया था पहले? I think no. So reduced data क्या है आपके No, पास? sir. Okay. So you are trying to reduce the dimensions of the data. तो वहाँ पे आप जो attributes आपका data analysis के लिए जरूरी है, you are going to select only that. Are you getting my point? मतलब क्या है? You are not going to consider all the attributes. You need to select only those attributes which are required for the data analysis portion or that pattern recognition approach you are dealing with. ठीक है? So इसको, so you can assume that which values are critical, which are going to add more dimension and complexity to your dataset without any predictive contribution. So this approach is known as attribute sampling. अब जो आप क्या कर रहे हो, जैसे मैंने आयरिस डेटा सेट के बारे में बताया था, आपको वहाँ पे बताया था कि इसका कितना एट्रीब्यूट है, उस डेटा सेट का क्या एट्रीब्यूट है. जैसे आप लोगों को एक होमवर्क दिया था वाइन डेटा सेट के बारे में, तो आप लोगों ने जवाब भी दिया था कि ये डेटा सेट, वाइन डेटा सेट में क्या क्या हैं क्लासेस, ठीक है, कितने नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स हैं. सो यू आर नॉट गोइंग टू सिलेक्ट ऑल ऑफ देम, राइट? You are going to select only those which are relevant to your pattern recognition approach, and that process is known as attribute sampling. ये term याद रखना, attribute sampling. Next, complete data cleaning. Again, someone is inviting. Let me check. So, क्या है complete data cleaning? मतलब क्या है? Some missing values can tangibly reduce prediction accuracy and make this issue as a bad. तो क्या होगा? Suppose कुछ values missing हैं, कोई attribute में suppose out of 50 instances 10 values are missing. तो उससे आपका data accuracy और means जो prediction कर रहे हो क्या वो accurately हो पाएगा? If some values, some data values are some कुछ variables का value ही missing है, right? कुछ attributes का value missing है. Can you think that that approach, that pattern recognition approach will reach or achieve that accuracy, that mass of accuracy? No, because आपका data values अगर missing है तो आप कैसे ये कर सकते हो कि पूरा आपका accuracy वही मिलेगा जब पहले पूरा डेटा था, पूरे एट्रीब्यूट्स का वैल्यू था, और अभी क्या है मिसिंग हो रहा है, कुछ वैल्यूज मिसिंग हो रहा है. तो ये चीज क्या करोगे, आप उस फिल इन द गैप करोगे. जो वैल्यूज मिसिंग है यू ट्राई टू फिल दैट. दैट आल्सो कम्स अंडर कंप्लीट डाटा क्लीनिंग और डाटा क्लींजिंग प्रोसेस. और बाकी तो मैं बात कर पहले किया भी था कि व्हाट डू यू मीन बाय आउटलायर क्या है, व्हाट इज नॉइज. सो दिस थिंग्स यू नीड टू क्लीन also, okay, for a better accuracy. So that is known as complete data cleaning. Then decompose data. Some values in your data set can be complex, and decomposing them into multiple parts will help in capturing more specific relations. And this process is actually the opposite to reducing data, as you have to add new attribute based on the existing ones. अब यहाँ पे क्या काम कर रहे हैं हम लोग, पूरे डाटा सेट को आप
मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड करोगे, उस मल्टीपल पार्ट्स को आप एज ए इंडिविजुअल डाटा सेट भी कंसीडर कर सकते हो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यहाँ पे आप उसको डिवाइड कर रहे हो। पहले हमने डायमेंशन रिडक्शन की बात की, रिड्यूस डेटा, डायमेंशन रिडक्शन। वहाँ पे हम वही सारे एट्रीब्यूट सिलेक्ट कर रहे हैं जो हमारे पैटर्न रिकॉग्निशन प्रोसेस के लिए इंपॉर्टेंट है, relevant. We are selecting only those attributes which are required for our pattern recognition approach. Now, in this case, what we are doing the opposite case, means we are decomposing the data set and we try to add to that particular decomposed structure. Suppose कोई एक ग्रुप जो जिसमें पूरा डाटा सेट को आपने डिवाइड किया अलग अलग ग्रुप में, और उस ग्रुप में और भी कुछ एट्रीब्यूट डालना पड़ रहा है आपको, तो आप वो करोगे। तो ये एक प्रकार का क्या हो रहा है, आप जो किया था डायमेंशन रिडक्शन में उसका ऑपोजिट हो रहा है, डिकम्पोजिंग द डाटा। ठीक है, सो दिस इज डिकम्पोजिंग द डाटा। सो ऐसा नहीं है कि हर एक स्टेप को आपको फॉलो करना है। आप ये कर सकते हो, रिड्यूस डाटा फॉलो किया, कंप्लीट डाटा क्लिनसिंग फॉलो किया, you may not follow the decomposed data. This is not mandatory. Okay, as per the requirement, you will follow this. Then rescaling, this one is important. I often used to do that. और rescaling मतलब क्या है, suppose कुछ पॉइंट्स हैं 1 to 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे कुछ वैल्यूज हैं। ओके, वी हैव फॉर द 10 डाटा वैल्यू पॉइंट्स, वी हैव द वैल्यूज लाइक 1 2 3 अप टू 9 10 लाइक दैट। बट हम ये चाहते हैं कि वो वैल्यूज को 0 और 1 के अंदर लाया जाए। आर यू गेटिंग मी? पहले 1 था, 2 था, अब इस 2 को मैं क्या किस में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, एक वैल्यू जो 0 एंड 1 के अंदर लाई करे। और ये चीज आप देखोगे भी कि इन फ्यूचर व्हेन यू डू सम प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट, यू विल सी दैट you often used to do that actually. You'll often used to do that. You'll convert those value to lie in the range, in the interval 0 to 1. ये जो प्रोसेस आप कर रहे हो, वैल्यूज ऑटोमेटिकली सेम ही रहेगा। क्या होगा, आपने 1 से 10 तक कंसीडर किया था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब उसी वैल्यूज को 0 और 1 के अंदर आपने अगर रीस्केलिंग किया, मतलब उस प्रत्येक वैल्यू का क्या होगा, एक वैल्यू मिलेगा आपको जो 0 एंड 1 के अंदर लाई करे। तो अल्टीमेटली वो वैल्यूज इक्विवेलेंट रहेगा। बस हम क्या कर रहे हैं, 1 से 10 के जगह पे हम 0 एंड 1 पे कंसीडर कर रहे हैं। मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज प्रीवियसली यू हैव द पॉइंट्स वैल्यूज लाइक 1 2 3 4 अप टू 10, right? Now you are just rescaling those values so that they will lie in the interval 0 and 1. So overall their values will be equivalent in the both scale. पहला स्केल 0 1 to 10 था, अब इसका स्केल जो है 0 to 1 है। ठीक है, ये जो मैं कर रहा हूँ, what I am doing actually, this is known as rescaling of data. ठीक है, so rescaling of data, और एक important टेक्निक है जो we often used to actually apply this technique, that is known as data normalization. याद रखना, data normalization. Data normalization procedures aimed at improving the quality of a data set by reducing the dimension and avoiding the situation when some of the values overweight others. अब हम unnecessary 1 to 10 तक कंसीडर करने के बजाय हम 0 to 1 स्केल में भी कर सकते हैं। तो यही चीज हम करते हैं डाटा नॉर्मलाइजेशन के लिए, राइट? सो फर्स्ट क्वेश्चन टू यू, हाँ बोलो प्लीज आस्क। सर नो अंकित वेट मैंने डिस्कनेक्ट हो गल तक ऐड कर दिबो। ओके ओके, थैंक यू जयराम। सो are you getting my point? What is rescaling of data? बुझी पाला, समझ में आ गया सभी को? ओके, so एकर পৰা 10 লৈকে from 1 to 10 you have some data points. Data points আছে x1 x2 up to x10. For every point some values are there. Suppose x1 is 1, say x2 is say 2, x3 is 3, like that. X10 is 10.
ये 10 जो 10 है ये x10 का वैल्यू है, x5 is equal to 5, 5 is the value of x5. But this scale that I am considering, that values are lying in the range 1 to 10. बुझी पाए? Are you getting me? ये जो मैं कंसीडर कर रहा हूँ ये 1 से 10 के अंदर लाई कर रहा है। अभी इसी को मैं मैपिंग करूंगा कहाँ पे? एक स्केल लेंगे, एक इंटरवल लेंगे जो 0 से 1 होगा, मतलब x5 is equal to 5। अब इस 5 का वैल्यू, इसका इक्विवेलेंट वैल्यू 0 और 1 के बीच में कैसे क्या मिलेगा हमें? मैं वैल्यू को चेंज नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आप खुद ही देखो, जब x1 से x10 लिया, इनका वैल्यू 1 2 3 4 10 तक है। अब इसी को मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ 0 और 1 के स्केल में, तो ओवरऑल सभी का वैल्यू कम हो जाएगा उस 0 1 के अंदर। तो कम हो जाएगा मतलब क्या है? उस स्केल के अंदर जो होगा वो सेम होगा, मतलब पहले भी x5 का वैल्यू जो था 5 और x6 का वैल्यू 6, जो x5 इज लेस देन x6। अब ये वैल्यू कॉरेस्पॉन्डिंग 0 एंड 1 स्केल में भी आपको मिलेगा एक वैल्यू, जो जहां पे भी आपका x5 इज लेस देन x6। Ultimately they are equivalent, just we are moving from one scale to another scale. अब और एक एग्जांपल देता हूं। सपोज आपने पहले वेट को मेजर किया किलोग्राम में। आर यू गेटिंग मी? किलोग्राम, 1 किलोग्राम इज इक्वल टू हाउ मेनी ग्राम्स? कुनबा को पाइबो? तो कोई बोल सकते हैं 1 किलोग्राम में कितने ग्राम्स रहता है? शायद कोई नहीं बोल सकता। 1000 grams. Wow, great answer. Okay, so 1 kilogram is equal to 1000 grams. You all know that. अब मैं किलोग्राम में कंसीडर कर रहा हूं तो 500 ग्राम्स मिला। 500 ग्राम्स का वैल्यू किलोग्राम में मैं कैसे लिखूंगा? कोई बता सकते हैं मुझे? कैन यू टेल मी हाउ विल राइट दैट? 0.5 half kg sir. 0.5 kg. 0.5 kg and half kg is 0.5 kg, right? ठीक है, सही जवाब दे रहे हो, जो भी जवाब दिया अभी। व्हाट्स योर नेम? Anyway, you are correct. Okay, right. So 0.5 जैसे आपने कहा, जैसे अंकित ने भी कहा हाफ, तो ये सही जवाब है। हाफ केजी, हाफ स्टैंड्स फॉर 0.5 केजी। समझ में आ रहा है? मैं ये जो लिख रहा हूँ 500 ग्राम्स इज इक्वल टू 0.5 केजी लिख सकता हूँ कि नहीं? कोई बताओगे? कैन आई राइट 0.5 केजी इज इक्वल टू 500 ग्राम? हाँ हाँ Yes, सर, sir. लिख सकते हैं। यही चीज मैं बोल रहा हूँ। एक बार आप 1 से 10 लिया, उस स्केल में उसका वैल्यू 5 मिल रहा है, आप उसी चीज को 0 to 1 पे कन्वर्ट किया, अल्टीमेटली उसका वैल्यू अलग स्केल में कंसीडर कर। आइदर आपने किलोग्राम में लिया, सारे को किलोग्राम में लिख रहे हो, ठीक है, आप उसी को ग्राम में लोगे। सपोज 1 किलोग्राम, आप उस ग्राम वाले स्केल में क्या होगा? 1000 ग्राम, राइट? हाफ 0.5 केजी, आप उसको लिखोगे 500 ग्राम। दोनों अलग अलग स्केल हैं, बट दोनों का वैल्यू एक है। दैट इज नॉन एज रीस्केलिंग। एक स्केल से दूसरी स्केल पे जाना उसको बोलते हैं रीस्केलिंग, एंड मैक्सिमम टाइम्स वी यूज टू डू दैट, बिलीव मी, इन मशीन लर्निंग और इन पैटर्न रिकॉग्निशन, व्हाटएवर इट इज, वी ट्राई टू depend on this rescaling of data, okay, so that we can minimize the complexity used in the heavyweight data. So data normalization is one such technique for that. Now first question is that you all will answer, what do you mean by data normalization techniques and what is min max procedure? एक प्रोसीड्यूर का नाम बता रहा हूँ जो कि मैं बाद में प्रैक्टिकल करके भी बता दूंगा, बट आज के लिए आपका काम क्या है? डेटा नॉर्मलाइजेशन मतलब क्या है, इसका डेफिनेशन लिखोगे कमेंट से, और मिन मैक्स प्रोसीड्यूर क्या है, इसका भी डेफिनेशन लिखोगे। ठीक है? समझ में नहीं आएगा तो मैं फिर से समझा दूंगा। आप कैन यू टेल मी दैट वेदर दिस रीस्केलिंग ऑफ डेटा इज क्लियर टू यू और नॉट? Yes, sir. Yes sir. Sir. Yes sir. Okay, good. The next thing is that discretize data. Sometimes you can be more effective in your prediction if you turn numerical values into categorical values. This can be achieved, for example,
example by dividing the entire range of group values into a number of groups. अब इसमें 2-3 टर्म है जो मैं एक नेक्स्ट चैप्टर जो स्टार्ट करूंगा आप लोगों का, ठीक है, नेक्स्ट मॉड्यूल जो स्टार्ट करूंगा वहां पे बहुत अच्छे से डील करूंगा इसके साथ. यहाँ पे मैं जो नया टर्म यूज किया हूँ, व्हाट द नया टर्म, न्यू टर्म्स आई एम यूजिंग हियर इज न्यूमेरिकल एंड देन कैटेगोरिकल वैल्यूज, राइट. मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूँ. टी शर्ट तो पहने होंगे आप लोगों ने अभी तक के. यू गाइस आर ऑल अवेयर अबाउट द टी शर्ट, हाउ टू गो फॉर शॉपिंग द टी शर्ट, यू अबाउट योर साइज, यस और नो? जाना Yes, ना sir. ना जाना. वहां पे आप लोगों ने देखा होगा, बाकी सब चुप है तो नहीं जानते हैं क्या? जानते हो ना टी शर्ट का साइज वगैरह, ये सब के बारे में तो जानते होंगे आप लोग. Yes, sir. ओके. तो वहां पे आपने देखा होगा, यू हैव सीन दैट सपोज एक्स्ट्रा स्मॉल, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, एंड पीपल लाइक Ankit will go for एक्स्ट्रा ट्रिपल लार्ज, राइट? ऐसा है कि नहीं? ये सब सुना है कि नहीं? टर्म एक्सएल, एल, एम, एस, Yes, sir. सुना है? जैसे अंकित आप क्या यूज करते हो? Yes. एक्स ट्रिपल एल, हाँ, है कि नहीं? चलो कोई बात नहीं, जो के पर. तो ये सब क्या है? ये एक कैटेगोरिकल वैल्यूज है. आ रहे हैं समझ में? जैसे जो जो इंसान एक्सएल साइज का टी शर्ट पहनेंगे, उसको मैं अगर जबरदस्ती इसको बोलूं कि स्मॉल साइज का टी शर्ट पहनो, क्या वो पहन पाएगा? नो, नहीं सर, फट जाएगा. फंस जाएगा. ठीक है, तो वही बात है. तो क्या होगा, मैं एक क्यों बोल रहा हूँ, ये जो एक्सएल टर्म है, एल टर्म है, ये सब मैं एक कैटेगरी वाइज बोल रहा हूँ. बट इसी को ही अगर मैं इसका न्यूमेरिकल वैल्यू बोलूंगा तो बोलूंगा 42, 40, 38. सुना है आप लोगों ने? मैंने तो सुना हूँ, आप लोगों ने भी सुना होगा ये चीज शायद. एक्सेल को मैं क्या Yes, बोलता sir. हूँ? 42, राइट और रॉन्ग? 42 बोलते हैं Right, ना sir. एक्सेल को. हाँ sir. Similarly, 40 मतलब large, 38 means I think medium like that. तो वो सब क्या है? उस कैटेगोरिकल वैल्यू के रेस्पेक्टिव सब न्यूमेरिकल वैल्यू है. आर यू गेटिंग मी? तो मैं सिंपली 42 भी बोल सकता हूँ, सिंपली एक्सेल भी बोल सकता हूँ. बट टैगिंग के लिए क्या अच्छा होगा, डिस्क्रिटाइज जब आप करोगे, कैटेगरी वाइज करोगे तो ज्यादा लोगों को समझ में आएगा. क्योंकि क्या है ना, नंबर याद रखना टफ होता है, रेदर देन ये कैटेगरी याद रखना आसान होता है. जैसे आप आईपी एड्रेस का भी देख लो, मैं लिख दूंगा www.kazirangauniversity.in, उसका आईपी एड्रेस ढूंढता रहूंगा तो वो टफ है. तो इसी तरह कॉमन पीपल यूज टू रिमेंबर, is to easily remember these categories rather than going for the numbers. So that's why अब ये जो हम अप्रोच, हम जो कुछ भी पैटर्न रिकॉग्निशन कर रहे हैं, ये तो हम लोग तो कंप्यूटर साइंटिस्ट है, हम जानते हैं इस चीज के बारे में. बट जो इसका आंसर, मतलब इसका जो आउटपुट देखेंगे, वो लोग तो कॉमन पीपल है. उनको आप बोलोगे कि या हमने यहाँ पे नेइफ बेस्ड थ्योरम लगाया है, उनसे उनको कुछ मतलब नहीं. उनको मतलब क्या होगा कि आपने कैसे उसको क्लासिफाई करके रिजल्ट प्रेजेंट कर रहे हो. आर यू गेटिंग मी? डॉक्टर्स को बोलोगे सपोज जो ऐसी एमबीबीएस किया है या तो कुछ एमएस किया है, उन लोगों को ये थोड़ी आएगा कि आपने एसवीएम यूज करके ये ट्यूमर को क्लासिफाई करके दिखाया कि दिस ट्यूमर बिलोंग्स टू दिस वन और दिस ट्यूमर बिलोंग्स टू दैट वन. उसको सिर्फ रिजल्ट से मतलब, दे विल सी ओनली द रिजल्ट, ओनली द आउटपुट. They don't have any idea about the algorithmic portion that you are implementing inside your pattern recognition approach. Are you getting me? So what I mean to say that we always try to move towards the category wise value that will be very easy for treating, because for interpreting by the normal users. Now you tell me whether this is clear or not. Yes sir, Yes, sir. clear. Yes, sir. Okay, so these are the steps that involve while you go for creating your data set. ठीक है, ये सारे steps बहुत important है. You have to know each and every step and what actually we are doing there. Now with this, we have completed our module 1 of the syllabus, pattern recognition, and I hope that
all the topics that we have undergone through are clear to you. मॉड्यूल 1 आज कंप्लीट हो गया, शायद सभी को सारे टॉपिक्स जो मैंने डिस्कस किया समझ में आ गया होगा. Yes सर कंप्लीट डेटा क्लीनिंग तो और कोई तो होना. Okay, once again. So I think I told you about outlier, the technical term. Can you recall that? याद है ये चीज? তোমালোকক কৈছিলো আগতে outlier মানে কি? Yes, sir. Different characteristics in the same data set. That object which have different characteristics of the same data set. That is. Right. Very good. Okay. So actually क्या है, जो डेटा पॉइंट्स हैं उससे और मतलब क्या बोल सकते हैं, आपके पास 10 डेटा पॉइंट्स हैं और उसमें से एक डेटा पॉइंट क्या है, बहुत दूर में है जब आप उसको प्लॉट कर रहे हो. इसका मतलब यह है कि some data points are not actually showing the similar type of properties with respect to that particular data set and those other data points. And those points which are actually locating that far away from the other data points are known as outlier. So data cleansing means what? We try to remove those data outlier, those noise, and also one important thing that some values are missing. In some cases, suppose some values are missing, then what thing you can do? You need to fill that gap. You need to again go for, yeah, suppose आपने एक attribute था, suppose student Ace, उसमें out of 20 students 18 students का Ace आपने mention किया और 2 student का Ace आपने mention नहीं किया. तो क्या करोगे? आप उस प्रोसेस को फिर से देखोगे और उस Ace को कैलकुलेट करके वहां पे इनपुट करोगे. Right? So that thing is known as what? Filling the missing values. So all these things are coming under the data cleansing process, so that our data will reflect the exact values and they are not going to mislead the other users while going for the data analysis portion. ठीक है? क्या अभी समझ में आ गया इस मैंने जो काम अभी बताया? Is this clear, Jeta? Yes, sir. ठीक है? Yes, Okay. sir. Kashyavi. Oh, sorry, Kashavi and Jeta is a very confusing thing. Okay, so sorry, but I hope both of you got this. Can I assume sure? Yes, sir. ठीक है सर, बुझी पाला. So each and every steps are very important. So with this, we have completed the module 1. Now let's come to the module 2. But module 2 is a kind of homework for all of you. Module 2 जो है ये मैं मैंडेटरी नहीं रखा हूँ, ये मैं मॉड्यूल 2 को मॉड्यूल 1 के साथ एक्सेस रखा हूँ. मैथमेटिकल प्रिलिमिनरीज और मैथमेटिकल रिक्वायरमेंट्स, जो सारे मैथमेटिकल terms and theories and those equations that you have to know to understand this subject better. If you are just trying to stick to the application part, then that's okay. But if you go for the research-based kind of things, suppose you want to propose your own algorithm, then in that case you have to very much aware with this mathematical portions, and particularly the linear algebra portion. ये आप सभी को आना चाहिए, बट मैंने इसको मैंडेटरी नहीं रखा हूँ. तो ये इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो. फर्स्ट टेक ए स्क्रीनशॉट. Have you taken it? Yes, sir. Yes, sir. टर्म्स देखा है कि Yes, नहीं? ये सब sir. देखो, पढ़ो इसका. वेक्टर स्पेस, इनर प्रोडक्ट, आउटर प्रोडक्ट, इनवर्सेस, एजेंट वैल्यूज, एजेंट वेक्टर्स, सिंगुलर वैल्यूज, सिंगुलर वेक्टर्स, then these probabilities like Bayes theorem. Okay, then we have cross correlations, then we have some matrix spaces. These terms I suggest all of you guys at least go through their definition and some examples, क्योंकि ये आपको करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा. और इतना टफ नहीं है. इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में सभी में आप आई थिंक फर्स्ट
सेमिस्टर और सेकंड सेमिस्टर में किया होगा। तो लेट मी आस्क गो थ्रू इट इज दिस इज अ वेक्टर। ये वेक्टर है, सबको दिखाई दे रहा है? Is my screen visible to you? Yes, sir. Yes, sir. तो मैं ये तो वेक्टर बोली क्यों कहूँ? Why I have termed this as a vector? So because it has a value and also a direction. Right. This arrow indicates the direction. Some values as well as some magnitude are there. Right. So then we can similarly define vectors in the n dimension. Okay. Then vector addition, I hope you all know. Scalar product, just multiply with some scalar. Okay. Then dot product, x is ये करना आप लोग मैं डिस्कशन के रूप में, okay, means in the form of discussion we try to cover one topic, one chosen topic once in a week. ठीक है, अभी मैं सारे चीज डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि मुझे लगता है आप सभी को ये आता है। मैट्रिक्स ऑपरेशंस, मल्टीप्लिकेशंस। सो जो नेक्स्ट मैं डिस्कस करना चाहूँगा, जो आप लोगों से मैं मतलब चाहता हूँ कि आप लोग पढ़ो, वो है ये सब कोऑर्डिनेट सिस्टम और क्रॉस प्रोडक्ट तो सबको आता होगा। एसिस, एजेन वैल्यूज एंड एजेन वेक्टर्स, ये सुना है पहले? एजेन वैल्यूज और एजेन वैल्यूज एंड एजेन वेक्टर्स? No, sir. No. So do one thing today, you just go through the agent values and agent vectors, and in the next lecture we'll go through some discussion on this, and I'm asking this to all of you. एक बार साइल होगा सब लोग सभी लोग देख लेना एक बार, ठीक है? इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा कैसे एजेंट वेक्टर्स कैलकुलेट करते हैं और एजेंट वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है, ये सब थोड़ा थोड़ा देख लेना। मैं इसमें अलग से टाइम देना नहीं चाह रहा हूँ, बाद में एक दो डिस्कशन के जरिए सारे चीज डिस्कस कर लेंगे हम, ठीक है? मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट तो ये सब पढ़ा होगा आप लोगों ने, इसका डिटर्मिनेंट लिया, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो ये सब एक बार देख लेना। अगर जरूरत पड़ेगी तो हम फिर से डिस्कस करेंगे, बट नेक्स्ट लेक्चर में मैं एजेंट वैल्यूज एंड एजेंट वेक्टर्स आप सभी लोगों से सुनना चाहता हूँ, तो आप लोग ये एजेंट वैल्यूज एंड एजेंट वेक्टर्स पढ़ लोगे, राइट? ठीक है, कुछ तो बोलो, ये सुनो, या मैथ्स देख के घबरा तो नहीं गए ना सब लोग? सही बताओ। Okay. यस सर Yes, बंधन वो डिस्कनेक्ट हो गया। ठीक है, सब लोगों से आई वांट रिस्पॉन्स फ्रॉम ऑल ऑफ यू। प्लीज कवर दिस मैथमेटिक्स सेक्शन from your side, and for discussion mode we'll discuss some important topics out of them. Is this clear to all of you or not? Yes, sir. यस सर। Okay, good. মই তিনটা response পালো, বাকি সকলৰ response পোৱা নাই। How many of students we have now? I think 32. What the other students say? Anyway, I come to the next module, very important one, that is supervised learning. Can I start today or I will discuss from the next class? बोल दो जल्दी। कर दीजिए सर। स्टार्ट करूं? Okay, supervised learning, as the name indicates, the presence of a supervisor as a teacher. ठीक है, जैसे मैं इस लेक्चर में हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, आप लोगों को कुछ सिखा रहा हूँ, राइट?
सो आई एम योर सुपरवाइजर। ठीक है, इसी तरह सुपरवाइज लर्निंग में क्या होगा, एक सुपरवाइज और सुपरवाइजर रहेगा जो उस लर्निंग प्रोसेस में हेल्प करेगा। अब ये सुपरवाइजर क्या है, लेट्स सी। बेसिकली supervised learning is a learning in which we teach or train the machine using the data which is well labeled. That means some data is already tagged with the correct answer. Are you getting it? So after that, the machine is provided with a new set of examples so that supervised learning algorithm analyzes the training data and produces a correct outcome from the labeled data. ठीक है, मतलब क्या है, आप मैंने कहा आप लोगों को सुपरवाइज्ड लर्निंग में सुपरवाइजर होना जरूरी है, बट यहाँ क्या हो रहा है, वो डेटा अपने आप में सुपरवाइजिंग कर रहे हैं। कैसे? बिकॉज द डेटा आप जो प्रोवाइड कर रहे हो उस डेटा में ऑलरेडी टैग है, मीन्स द डेटा आर ऑलरेडी लेबल। you the algorithm knows that yeah this particular data is of class A. Getting me? So that's why this is known as supervised learning. अब उसके बाद उस supervised learning में हम नया डेटा देंगे और उसके जरिए उसका accuracy टेस्ट करेंगे। Now you tell me whether this definition of supervised learning is clear or not. একবার বুঝাই দিব। আকৌ এবাৰ বুজাইছো শুনা। supervised learning কি হয়, এইবিলাক হৈছে মেচিন লাৰ্নিং টেকনিক্স, ৰাইট? ইয়াত তুমি কি কৰিবা, ডেটা ফিট কৰিবা। ঠিক আছে, ডেটা ফিট কৰোঁতে কি হ'ব, তাত যিখিনি ডেটা ফিট কৰিছা সেইখিনি অলৰেডি টেগ। যেনেকৈ মই ক'লোঁ ছাপ'জ এই টি চাৰ্ট টু এক্সেল, এই টি চাৰ্ট টু এল, এই টি চাৰ্ট টু ML, মানে মিনছ M. So what we know that this t-shirt is XL, this t-shirt is L, this t-shirt is M. Then what happened? That the algorithm will be taught that yeah, XL size t-shirt has this features. This feature means its size should be 42, right? So similarly, अब क्या होगा, मतलब उस algorithm को तो नॉन डेटा मिल रहा है, जो भी डेटा आप प्रोवाइड कर रहे हो, ये टी-शर्ट आप पहले से टैग करके रखे हो, ये XL है और ये L है, राइट? तो अब क्या होगा, जो नया टी-शर्ट आएगा जिसमें लेबल आपने हटा दिया, अब वो हटा दिया, उसमें कुछ भी नहीं है, बट हमारे एल्गोरिथम को पता है कि एक्सेल साइज का क्या फीचर्स है, एल का क्या फीचर्स है, तो वो उस नए जो टी-शर्ट है उसका टैग को खुद कर देंगे कि हाँ ये दिस इज अ टी-शर्ट ऑफ साइज एक्सएल। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सुपरवाइज्ड लर्निंग। क्यों सुपरवाइज्ड लर्निंग कहा हमने? क्योंकि हमने जो डेटा प्रोवाइड किया है ऑलरेडी टैग्ड है, जो ट्रेनिंग डेटा हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो ऑलरेडी टैग है। ठीक है, उस डेटा के जरिए वो एल्गोरिथम लर्न कर रहे हैं कि इस डेटा का क्या क्या फीचर्स है। अकॉर्डिंगली जब नया डेटा आ रहा है उसको वो क्या कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली बेस्ड ऑन इट्स एक्सपीरियंस try to tag that yeah this belongs to XL, this belongs to L, and this belongs to M. So this is the supervised learning. Now you tell me whether clear or not. Buji pala? Yes, sir. Yes, sir, it's clear. Also, Yes, sir. Now let's go through one more example. Suppose you are given a basket filled with different kinds of fruits. Now the first step is to train the machine with all different fruits one by one. ये दिखाई दे रहा है सबको? Is this visible to all of you? क्या है ये? This is fruit basket, right? ये बिलक देखी सा, ये अंगूर है, ये सपोज अनार है या तो एप्पल है, जो भी है, ये केला है और ये कुछ होगा ऐसा। तो ये अलग अलग फ्रूट मैंने यहाँ इस बास्केट पे रखा हूँ। तो आप जानते हो कि हाँ ये अनार है, दालिम है ये, ठीक है, और ये जाम है माने मधुरी है, ये केला है और ये अंगूर है। तो आपको ये पता है कि ये इस टाइप का सेब जो है ये पार्टिकुलर इस फ्रूट का है, बट मशीन को कैसे पता होगा ये चीज? क्योंकि पहले आप सुपरवाइज्ड लर्निंग में बताओगे हाँ इस टाइप का सेब जो दिख रहा है ये केला है, और ये जो दिख रहा है रेड कलर या तो ये अनार है या तो ये जाम है, और सॉरी सेब है, ठीक है, क्योंकि जो सेब का स्ट्रक्चर है, सेब का जो कलर है वो क्या होगा, इसके साथ मैच करेगा। तो नेक्स्ट टाइम जब आप
दोगे कुछ फ्रूट जिसमें कुछ टैगिंग नहीं रहेगा कि ये अनार ही है, ये सेब है, पर वो मशीन मतलब एल्गोरिथम क्या करेगा, ऑटोमेटिकली डिसाइड करेगा या दिस कैरेक्टरिस्टिक्स is matching up to 90% with a apple, with an apple. So it is a shape, not an क्या, not a anar, like that pomegranate. So ये प्रोसेस में हमने क्या किया, पहले मशीन को दिखाया कि ये फ्रूट्स का ये फीचर्स है, ठीक है। जब ये लर्निंग प्रोसेस कंप्लीट हो गया तो मशीन को पता चल जाएगा कि हर एक फ्रूट का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, और नेक्स्ट केस में वो खुद अपने आप जब नया फ्रूट आप दोगे तो वो रिकॉग्नाइज कर लेगा कि यही वाला है, ये वाला है, लाइक दैट। दिस इज सुपरवाइज्ड लर्निंग। सो मैं फिर से एक बार पढ़ के बता देता हूं जो मैंने अभी आपको समझाया। इफ शेप ऑफ ऑब्जेक्ट इज राउंडेड एंड डिप्रेशन एट टॉप having color red, then it will be labeled as apple. If shape of object is long curving cylinder having color green yellow, then it will be labeled as banana. ঠিক আছে, গ্ৰীণ কালাৰো থাকিব পাৰে, মালভোগ কলৰ গতে येलो কালাৰো থাকিব পাৰে, पीला कलर का भी आप लोगों का क्या है, केला हो सकता है, या तो हरा कलर का भी हो सकता है। तो ये सारे चीज और उसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स रहेगा उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, ये बनाना होगा, ठीक है। नाउ सपोज आफ्टर ट्रेनिंग द डाटा you have given a new separate fruit, say banana, from basket and asks the algorithm to identify it. ये banana है, ठीक है। तो क्या होगा, since the machine has already learned the things from the previous data and this time have to use it wisely, it will first classify the fruit and its shape and color and would confirm the fruit name as banana and put it in the banana category. Thus, the machine learns the things from the training data, that is the basket containing fruit, and then apply the knowledge to taste the data, that is new fruit. ठीक है, आप समझ में आ गया। जैसे मैंने ये दिया मशीन को, ये बनाना है, ये रिकॉग्नाइज कर लेंगे कि ये जहाजी कॉल है, ठीक है, ये जो केला है, ठीक है, हरा है, तो इससे ये पता लग जाएगा कि जो हमारा एल्गोरिथम है सही ढंग से एक्यूरेटली रिकॉग्नाइज कर पा रहा है जो भी नया ऑब्जेक्ट उसके सामने आप रख रहे हो, ठीक है। पहले ट्रेनिंग हुआ, उसके बाद टेस्टिंग हुआ। ट्रेनिंग होने पे आपके पास नॉन डेटा सेट था, इसीलिए इस टेक्निक को कहा जाता है, इस लर्निंग प्रोसेस को कहा जाता है सुपरवाइज्ड लर्निंग। नाउ यू गाइस टेल मी वेदर दिस कॉन्सेप्ट विद दिस एग्जांपल is clear to you or not about the supervised learning? Clear. It's clear. Clear. Clear? Okay. So with this, I think I can terminate the lecture now. Okay. So we'll meet in the next lecture. Anyone